شہبانی کی ترتیب کی کتاب شروع کریں گے۔ خدا تمہارے ساتھ ہو، آئے ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلب خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے رقص کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ ان دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کی صحیفوں کا مدار ہے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ عزیزو، ہمارے سب اس لیے خدا کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کی حمد و تعظیم کریں، خدا کا شکر ادا کریں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں، خدا یسوع کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خدا ان کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آئیں۔ ہم سب مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے، نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے اسی کا نام لیا ہے لیکن راستے سے باز نہیں۔ ہم تیری محنت کرتے ہیں، ہم پر کر یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے رقص کے ہماری ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسرے کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا اقرار ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خدا یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ محنت اٹھانے والوں کو، سے دبے ہوئے لوگوں سے میرے پاس ہو، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلب خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ہم سب سے اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہم سب کو رہائی دے، ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستقیم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آئے ہم خدا کی حمد و تعریف کریں، اخبار کے ساتھ مل کر سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب زبور نمبر 18 کا ہے۔ آپ پہ
सिजदे के लायक है। खुदावंद हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है कि तू खुदावंद हमें खैरियत से यहाँ तक लाया। सो खुदावंद तेरा शुक्र हो। ऐ खुदावंद इसी तरह इस हैकल के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं और तुझसे दुआ करते हैं कि इस हैकल पे अपना हाथ रख, इसको हर तरह की मुश्किल से बचा के रख। काजी साहबान की भी खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तो इन्हें बड़ी बरकत दे, इनकी फैमिली को बड़ी बरकत दे। खुदावंद पूरी क्वायत के लिए दुआ करती हूँ। खुदावंद ये बच्चे जो तेरी इतनी खिदमत करते हैं, खुदावंद तो अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल कर। हाज़िर कलीसिया के लिए दुआ करती हूँ। खुदावंद एक बच्चों और बड़ी बरकत दे। खुदावंद जो बीमार हैं, किसी मुसीबत में हैं, खुदावंद उनकी बड़ी मदद और हिफाजत कर। और खुदावंद जहाँ जहाँ तेरे नाम से इबादत होती हैं, खुदावंद हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आज के कलाम के लिए भी आप तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद जो भी आज का कलाम हो, हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तो खुदावंद इस दुआ को सुनकर कबूल कर। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। भाइयों में से कोई भाई चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी कीजिए। कदूस कदूस रब अल मसीह यीशु में जिंदा स्वामी बाप, हम तेरे तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तूने जिंदों की जमीन पर रखा है। ऐ यीशु मसीह जी, तू रहमतों का बादशाह है। तू करम करने वाला है, तू फजल करने वाला है, तू बरकत देने वाला है, तू इज्जत देने वाला है। इस मौके के लिए, इस टाइम के लिए, इस घड़ी के लिए तेरे शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए। और आज तेरा पाक सबूत है, तूने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है। तेरे जो घर में आए तेरी बात करें, आदत की बात को अपने पाक लोग से छुपा दे। इनके दुख तकलीफों परेशानियों को दूर कर। जितने लोग अस्पतालों के घरों में बीमार हैं, उनको सेहत जा कर, उनको सारी कमजोरी को शांत भी बदल दे। वह के साथ हो, सामिया के साथ हो, इनको भी बरकत सुना मार कर। आएगी सिवासी अपनी रहमत और फजल कर मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने स्वामी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। शालपुर कल्याण सिंह गीतों की किताब गीत नंबर 375 कोई जरा गीतों की किताब, बहुत गीतों की किताबें यहाँ पढ़ी। अगर कहा मैं तो बताएं और मंगवा लेंगे। हर एक हाथ में होनी चाहिए। 375 नंबर गीत है, तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले बुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है
इमरान के लिए दुआ करें। मिसेस मार्था इमैनुअल का दामाद आशिर खुदा ने सो गया। दुआ करते कि खुदा अदीला को, उसकी मिसेस को, बेटे को, उसकी बुजुर्ग वालिदा को, भाई को बहुत बड़ी तसल्ली दे कि मुझे बहुत बड़ा सालिहा है। दुआ करते हैं कि खुदा उनके पूरे घराने को, ज़ुकार को तसल्ली में अता फरमाए। हम इस वक्त दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो कमज़ोरी की हालत में है। अपने भाई नई बरकत के लिए ख़ास तौर पर खुदा अपना शाफी हाथ उनकी तरफ बढ़ाए। मिस्टर एडविन के लिए जिनकी सर्जरी हुई है, खुदा ने जल्द से एहतियाती अता फरमाए। मिस फरा को याद करते हैं, मिसेस पॉल को याद करते हैं, उनकी ज़मीनी ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ख़ास तौर पर हम मास्टर विलियम जेम्स के लिए, मिसेस जेफन डेविड के लिए, पियरनेस के लिए, और जो लोग इस वक्त कमज़ोरी में हैं, खुदा अपना शाफी हाथ उनकी तरफ बढ़ाए ताकि वो सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ। जो लोग बैरून मुल्क हैं, हम उनके लिए दुआएं खैर करें। जिन मुल्कों में कोरोना वायरस की ये जो दूसरी लहर है वो तेज़ है, वहाँ पर खुदा अपने लोगों को अपनी पनाह में रखे। जो लोग, जो नौजवान तालीम इल्म हासिल करने के लिए गए, हम उनके लिए दुआ करें। खुदा उनकी कामयाबी से हमकनार करे और दराज़ी उम्र, सेहत और तंदुरुस्ती उन्हें अता फरमाए। नेल्सन, आप इस दुआ में हम सबकी रहनुमाई करें। इसी में हमारे नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि तू हमारा मालिक है, खालिक है, तू भला है, तू हमेशा अपने लोगों से भलाई करता है। आसमानी बाप, आज हम एक बार फिर तेरी पाक हज़ूरी में सब मिलकर तेरे ज़िंदा और क़ुद्दूस नाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें एक नया दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा ताकि हम आज की सुबह, आज के दिन तेरी पाक हज़ूरी में अपनी शुक्रगुजारियों को पेश कर सकें, अपनी इल्तिजाओं को पेश कर सकें। मैं ख़ुसूसी तौर पर आसमानी बाप तेरे हजूर में तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से इल्तिजा करता हूँ ऐसे तमाम लोगों के लिए जो किसी न किसी मुश्किल, परेशानी, मुसीबत, दुख या बीमारी में हो। हम जानते हैं कि तू ही हमारा शाफी है और तू ही हमारी दुआओं को सुनता है और तू ही हमेशा हमारी मुश्किलों से हमें बाहर निकलने का फल बख्शता है। हम तेरी मिन्नत करते हैं हमारे बीमारों पर तेरा कोई हाथ बढ़ा रहे, मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हूँ, कमज़ोरी की हालत से बहाल हूँ और हम सब मिलकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का बेहतरीन वसीला बन सके। हम ऐसे तमाम ख़ानदानों के लिए जिस वक्त सोगवार हालत में हैं, उनके प्यारे, उनके अजीज़ हमसे बिछड़ कर तेरे पास मौजूद हैं, हम उनके लिए शुक्रगुजारी भी करते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं तू जो इत्मीनान और तसल्ली का चश्मा है, अपने लोगों को अपने नाम से तसल्ली और इत्मीनान बख्शना ताकि हम सब एक रहें और तुझ में कायम रहें। हम अपने बच्चों के लिए, अपने नौजवानों के लिए जो बैरून मुल्क हैं, आज हम में नहीं है, हमसे दूर हैं, लेकिन हम उनके लिए तेरे हुजूर इंतजा करते हैं। तू हमारे बच्चों पर मेहरबान रहना, उन पर भी अपना कोई हाथ बढ़ाए रखना ताकि वो भी तेरे नाम और जलाल के लिए अपने आप को इस्तेमाल करें। आज की सुबह आसमानी बाप, जहाँ जहाँ पर भी तेरे लोग जो तेरे नाम से कहलाते हैं इकट्ठे होते हैं,
तो सब पर तेरी नजर रहे, क्योंकि दुनिया भर में जब सारा दिन लोग इसी तरह तेरे हुजूर में आते जाते रहेंगे। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि सब पर तेरा कभी हाथ रहे, सबको तू अपनी बरकतों से मालामाल करे, सबकी शुक्रगुजारी को कबूल फरमाए, और हमें सबको, हमें खानदानी तौर पर इस कलीसिया को, इस डायसिस को उसी तरह इस्तेमाल करे जिस तरह गुज़श्ता दिनों में, सालों में इस्तेमाल करता रहा, ताकि हम सब तब तक ये खिदमत जारी रखें जब तक तेरी इंजील की तफसील का काम पूरा नहीं होता। आज का जो कलाम तो अपने बंदे के वसीला से करना चाहता है, उसके लिए सबको तैयार कर, सबके दिलों को तैयार कर, ताकि हम पूरे तौर से तवज्जो से उस कलाम को अपने दिल में रखें और आने वाले वक्तों में वो हमारी कमी को, हमारी कमजोरी को पूरा करे। ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पाते हैं, आमीन। आमीन। आज सुबह हमारी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस के 3 हिस्से हैं। आज का पहला विरद अय्यूब की किताब। बाइबल खोलें, जो आपके सामने बाइबल पढ़ी है, पुरानी बाइबल में ये जो हवाला है आपको सफ़ा नंबर 498 पर मिलेगा, 498। नई बाइबल में सफ़ा नंबर 640, पुरानी बाइबल में सफ़ा नंबर 498। अय्यूब, खुदा का बंदा, जिसको हम अय्यूब साबर कहते हैं। 7वां बाब पहली आयत से 8वीं आयत। अय्यूब की किताब 7वां बाब पहली आयत से 8वीं आयत। कोई पढ़ना चाहता है? पिछली दफा पढ़ा था? नहीं, चले आज आप पढ़ें, शाबाश। आज का दूसरा विरद सही लफ्ज़ है कुलसियों, ठीक है, कुलसियों नहीं है, कुलसियों का खत, ठीक है। पहला बाब 15वीं आयत से 20वीं आयत। जो बाइबल आपके सामने पड़ी है, पुरानी बाइबल सफ़ा नंबर 193, 193, और नई बाइबल में 274, 274। क्रिश्चियन के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत, पहला बाब 15वीं आयत से 20वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस की तिलावत को करना चाहता है ख़वातीन में से? फिर हम कोर्स गाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 349, हमद तेरी यहोवा। फिर इसके बाद हम मुक़द्दस मरकज़ का अंजीली बयान सुनेंगे। पहला बाब 27वीं आयत से लेकर 29वीं आयत से लेंगे 34वीं आयत तक। मुक़द्दस मरकज़ का अंजीली बयान, मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील, पहला बाब 29वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस की तिलावत हमारे लिए होगी। कौन पढ़ना चाहता है? चलिए आप पढ़ें। मेरे हाथ में शादी की एक पुकार है। कलाम में से अय्यूब उसका 7वां बाब पहली आयत से 8वीं आयत तक। क्या इंसान के लिए ज़मीन पर जंगो जदल नहीं, और क्या उसके दिन मजदूर के से नहीं होते? जैसे नौकर साया की बड़ी आरज़ू करता है और मजदूर अपनी उजरत का मुंतज़िर रहता है, वैसे ही मैं बुतलान के महीनों का मालिक बनाया गया और मुसीबत की रातें मेरे लिए ठहराई गई हैं। जब मैं लेटता हूँ तो कहता हूँ कब उठूँगा, पर रात लंबी होती है और दिन निकलने तक इधर उधर करवटें बदलता रहता हूँ। मेरा जिस्म कीड़ों और मिट्टी के ढेलों से ढका है, मेरी खाल सिमटती और फिर नासूर हो जाती है। मेरे दिन जुलाहे की ढरकी से भी तेज़ रफ्तार हैं और बगैर उम्मीद के गुजर जाते हैं। याद करके मेरी ज़िंदगी हवा है और मेरी आँख खुशी को फिर ना देखेगी।
جو مجھے اب دیکھتا ہے اس کی آنکھ مجھے پھر نہ دیکھے گی، تیری آنکھیں تو مجھ پر ہوں گی پر میں نہ ہوں گا۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ آج کا دوسرا حوالہ کلوسیوں، نکالیں ذرا، سب نکالیں یہ حوالہ۔ مقدس پولس رسول نے یہ خط لکھا تھا اس کلیسیا کو، صحیح جو لفظ ہے وہ کلسے کلیسیا ہے، کلسے کی رہنے والے کلیسیوں کی کلیسیا۔ جی، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے معروف ہے، کیونکہ اسی نے سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معمولی اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا کر صلح کر کے سب چیزوں کا اور اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل ملاپ کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں یا خواہ آسمان کی۔ خدا ان کا پاک کلام کا بڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آمین۔ ہم तेरी
मुकद्दस मरकज़ रसूल की बात पर लिखी की इंजील उसका पहला बाब 29वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। और वो फिल्फ और इबादत खाना से निकलकर यकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और इंद्रियास के घर आए। शमौन की सास तक में पड़ी थी और उन्होंने फिल्फ और उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तब उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उनको जिनमें बदरूहें थी उसके पास लाए और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने ना दिया क्योंकि वो उसे पहचानती थी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और चले जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे और कहेंगे मैं ईमान रखता हूँ एक बाप पर जो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है और एक खुदा की सृष्टि पर जो खुदा का इकलौता बेटा है वो लाशों से पेश है अपने बाप से मौलूद खुदा से खुदा नूर से नूर हकीकी खुदा से हकीकी खुदा मसलूम हकीकत के मौलूद उसका बाप का एक ही ज़बान है उसके वसीले से कुछ चीज़ें बनी और हमारे के लिए और हमारी इताअत के वास्ते आसमान पर से उतराया और उनको जिसकी कुदरत से कमाने वाली उससे मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पहले उसके हमारे लिए मज़लूआ हुआ। उसने तो उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन फरिश्तों के बमुजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाहर इधर बैठा है वो जलाल के साथ जिंदों और मौतों की रात के राज वाला है। उसकी सल्तनत कायम होगी और मैं ईमान रखता हूँ रूल गुज़रा जो खुदा की बख्शवा है वो बाप और बेटे के साथ है उसके बाप और बेटे के साथ जिंदगी है वो नबी की ज़बान वाला मैं एक पाक आप दूसरी से बच ईमान रखता हूँ मैं एक बख्शवा जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और वो तो किया आसमानी बाप हम सब इस वक्त तेरा कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। तेरे पापों की रहनुमाई चाहते हैं क्योंकि इसके बगैर हम इन सच्चाई को समझ नहीं सकते। हाजिर जमात पर तेरी बरकत चाहते हैं और एक एक के लिए दुआ करते हैं सबको समझने की परखने की ज़रूरत फरमा ताकि आज का कलाम हम सब के लिए बरकत का बाइस बने। अपने खादम की मुँह में अपना कलाम डाल दबाव बेचे और उसके नाम से जमात बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबको वेलकम करता हूँ कि आप लोग आज शुक्र खुदा के घर में शुक्रगुजारी के लिए उसकी ताज़ीम के लिए उसकी सताइश के लिए आए ताकि हम सब मिलकर अपनी मनाजातें अपनी शुक्रगुजारियाँ अपनी दरख्वास्तें खुदा के हुजूर गुजरा सकें। और मेरा और आपका खुदा जिस पर मेरा और आपका ईमान है वो मेरी और आपकी दुआओं को रद्द नहीं करता, सुनता है। इसलिए कि वो रहीम करीम खुदा है। इसलिए खुदा ने मुझे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती दी ताकि हम उसके घर आएँ, उसकी ताज़ीम करें, उसकी सताइश करें। गुज़रे सारे हफ्ता के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें। गुज़रे हफ्ता में एक ख़ास दिन जो आलमी सतह पे मनाया गया वो था, खुदा हम सबको अपनी पनाह में रखे, कैंसर डे, शैतान से बचाव का दिन। इतना ज़्यादा कैंसर फैला जाता है ऐसे इलाकों में जहाँ सफाई नहीं होती, जहाँ पानी गंदा होता है, जो चीज़ें म्यार आप बाहर से खाते हैं। इसलिए हम उन लोगों के लिए जो कैंसर में मुब्तला हैं दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके घराने के लोगों को दुआ का फजल अता फरमाए। मुक़द्दस मरकज़ का जो इंजीली बयान है उसमें मेरे लिए और आपके लिए तसल्ली है कि मेरा और आपका
کا جو مسیح ہے وہ شافی ہے، وہ شفا بخشتا ہے. اور جب وہ ایسے گھر میں جہاں بیماری، جہاں مشکل، پریشانی، اگر اس گھر میں خدا ترس لوگ رہ رہے ہیں، اگر اس گھر میں وفادار لوگ رہ رہے ہیں، اگر اس گھر میں دیانتدار لوگ رہ رہے ہیں، تو بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، شفا مل جاتی ہے، آزادی مل جاتی ہے، رہائی مل جاتی ہے. اور یہ ایک خاص واقعہ ہے مقدس مرکز کی انجیل میں کھولے جاتے ہیں، جو ابھی حوالہ پڑا ہے. چند باتیں یہاں سے لے کے پھر میں ایوب کی کتاب کی طرف جاؤں گا. اور وہ فی الفور عبادت خانہ سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے. کیوں؟ پتہ چلا تھا یسوع مسیح کو، کیونکہ جو ساس ہے وہ بیمار ہے. یہاں پہ جو لفظ لکھا ہے سنے گا، شمعون کی ساس تپ میں پڑی تھی. جو نوجوان بچے ہیں، تپ کا لفظ یہ بخار ہے. پنجابی میں ہم کہتے ہیں بھائی فلاں شخص کو کیا چڑھا ہے؟ تاپ. اور کئی دفعہ لوگ گالی بھی دیتے ہیں. یہ نوجوان بچے سن رہے ہیں اس لفظ کو، اس کی روٹس پہ جائیں. اس کی سانس بیمار تھی، اسے ٹمپریچر تھا، اس کو تاپ چڑھا ہوا تھا. اور جو ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے، جو نرسیں یہاں بیٹھی ہیں، وہ بدن کو توڑتا ہے. وہ مشکل میں تھی. یسوع مسیح وہاں گئے. خدا کے کلام میں لکھا ہے اس نے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا. اتنا زیادہ بخار تھا کہ اٹھ نہیں سکتی تھی. یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اٹھایا. اتنی طاقت آ گئی. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے تپ، بخار، ٹمپریچر، بیماری اس پر سے اتر گئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی. آپ اس پہ غور کریں. یہ کرسچن ویلیوز میں بات آتی ہے، مسیح اقدار میں بات آتی ہے. خدمت کرنا، مہمان نوازی کرنا، شکر گزاری کرنا. یہ اٹھ کے اس نے شکر گزاری کرنا شروع کر دی فوراً. وہ خاتون جو اٹھ نہیں سکتی تھی، جس کا بدن ٹوٹا ہوا تھا، بخار میں مبتلا تھی. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جب لوگوں نے دیکھا، پھر شام کو جب سورج ڈوب رہا تھا، تو سب لوگ جتنے لوگوں تک خبر پہنچی، سب بیماروں کو، جتنے مختلف بیماری میں مبتلا تھے، پریشان تھے، دکھی تھے، کچھ ایسے بھی تھے جن میں بادل روح تھے، اس کے پاس لائے. آج بہت بدروئے ہیں. انہی ایسے حوالوں کو لے کے لوگ کئی دفعہ لوگوں کو پریشان بھی کرتے ہیں، ٹویسٹ کرتے ہیں، بات کو مروڑتے ہیں اور لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں. سر میں درد بھی ہو تو کہتے ہیں بدرو ہے. ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں. ہر کام میں نہیں ہے بدرو. کہیں بھی کینسر ہوتا تو لوگ کہتے ہیں یہ بدروؤں کی وجہ سے ایسا ہوگا. کئیوں کو آج کا جو دور ہے، بیماریاں تو بہت زیادہ ہیں. کورونا تب آیا نا پچھلے سال، اس سے پہلے بھی ٹائیفائڈ، بخار، تپ اور طرح کی بیماریاں. اور لوگ شک میں ڈال دیتے ہیں گھر والوں کو جا کے.
साया भी आपके घर में मुश्किल है, किसी ने कुछ किया था, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, वो ऊपर बैठा हुआ है। देखिए इस हवाले में बदरूहें भी थी लोगों में, वो भी इसके पास लाए, सारा शहर दरवाजा पर जमा हो गया। पीछे मुड़ के देखें शहर कौन सा था। 21वें आयत देखें, कभी गलती ना करना, कलाम में लिखे है। और 21वें, फिर वो कहाँ है? वाह भाई वाह, क्या बात है सेंट जॉन से। और कुफर नहीं है ये भाई, कफर है। ट्रेंड लोग, पास्टर सब, वो भी कुफर नूम भी कहते हैं। मैंने सुना इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया था। ये कुफर नूम नहीं है, कफर नूम है। और वहां यीशु मसीह जब गए तो वहां भी यही हाल था। वहां उस वक्त के चौधरी बैठे हुए थे, फकीर, फरीसी, अख्तियार वाले, तालीम याफ्ता स्कॉलर्स। वहां भी एक शख्स आ गया जिसमें बाल बदरू थी। और यहां भी लोग आए जिनमें बाल, आज भी बड़ी बदरू हैं। जो जेन्युइन बदरू हैं वो नहीं है, हमने अपने अंदर खुद ही पाल रखी है, जो लोग हमें शक में डाल देते हैं। अच्छा है कि अय्यूब ये बात नहीं करता कि ये बदरू का काम है कि मैं बीमार हो गया। उसने ये नहीं कहा। खुदा की कलाम में लिखा है सब लोग वहां पे आए, खुदा की सूची ने उन्हें शिफा दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी। बदरू भी भाग गई क्योंकि बदरू है यीशु मसीह को, बदरू है यीशु मसीह को। पर मैं और आप सही तरह से नहीं पहचानते। हम यीशु मसीह को जानते तो हैं, मानते नहीं हैं। लोगों को भी बताते हैं क्या मसीही हैं। मानने के सुन, जब मैं और आप अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करके उसे अपना शख्सी निजात देता कबूल कर लेंगे। निकालें अय्यूब का हवाला, उसका इसके साथ क्या ताल्लुक है ये भी देखते हैं। अय्यूब की किताब, अय्यूब के बारे में पूरी दुनिया, मैं और आप ये कहते हैं अय्यूब साबर। क्यों जी कहते हैं ना? पहली आयत से मैं शुरू करूंगा। उस वक्त उसने क्या दिया था? ऐसा शख्स जो खुदा से डरने वाला था, रास्तबाज भी था, कामिल भी था। हम में से कोई भी कामिल नहीं है, ना कोई पादरी कामिल है, ना कोई बिशप कामिल है, ना कोई पोप साहब कामिल है। नो, अय्यूब कामिल शख्स था। किसी रसूल के बारे में भी ये नहीं लिखा कि वो कामिल था। सिर्फ अय्यूब के बारे में यहां वो कामिल शख्स था, खुदा पर भरोसा रखने वाला था, उससे डरता था। वो कहता है पहली आयत में, ये अय्यूब के अल्फाज है, क्या इंसान के लिए जमीन पर जंगो जदल नहीं? जब तक मैं और आप जमीन पर हैं, जहां जंग जारी है। एक जंग तो ये इंडिया पाकिस्तान वाली, एक इब्लीस की और हमारी जंग है। इस दुनिया में कौमों में, लोगों में, मुल्कों में जंग है। वो सवाल वहां पे किया गया कि क्या जमीन पर ये नहीं सब कुछ हाँ है? और क्या उसके दिन मजदूर कैसे नहीं होते? हर शख्स जो इंसान है उसके जो दिन है मजदूर जैसे। आपके घरों में मजदूर काम करते हैं, आपने गीला में देखा होगा, जो मेहनत करते हैं टाइम पे बेचारे आ जाते हैं और फिर वो इंतजार करते हैं, काम करते करते घड़ी की तरफ उनका ध्यान होता है कि कब दिहाड़ी, दिन, वक्त पूरा 8 घंटे का पूरे हो। मजदूर का सहाल है मेरा और आपका इस दुनिया में, इस जमीन पर। क्यों वो ऐसा करता है? जैसे नौकर साया की
बड़ी आलसी करता है। धूप में जब कोई काम कर रहा होता है ना, उसको साई की जरूरत होती है। और कई दफा हमारे घर बैग हैं, थक गए, इसलिए कि हम भी उसका टाइम देख रहे होते हैं कि वो अपने टाइम में जो काम हम चाहते हैं वो करें। लेकिन मैं आप ऐसा नहीं करते, टाइम गुजरता जा रहा है। मैं आपको बता दूं, 2021 आ गया ना, पहला महीना गुजर गया, आज दूसरे महीने का आज पहला इतवार है, बड़ी जल्दी गुजर रहा वक्त। खुदा की किताब में लिखा है, मैं और आप इस दुनिया में इंसान इसी तरह हैं जैसे मजदूर अपनी उजरत का मुंतजर रहता है। उसे उम्मीद होती है, इंतजार करता रहता है कि वक्त पूरा हो और मुझे मेरी उजरत मिले, मुझे मेरे पैसे मिले, मेरी मजदूरी मिले और मैं चीजें लूं और अपने घर जाऊं। मैं और आप किस चीज के इंतजार में हैं, किस चीज के मुंतजर हैं? और खुदा के कलाम में अय्यूब अपने बारे में कहता है, सुन लें, वैसे ही मैं बुतलान के महीनों का मालिक बनाया गया हूं। मुश्किल वक्त, बर्बाद होने वाला वक्त, मुझे तंग करने वाला वक्त, मैं इन महीनों का जिसमें मैं मुश्किल में, परेशानी में हूं, दुख में हूं, बीमारी में हूं, मैं ऐसे दिनों का मालिक बनाया गया हूं। कामिल शख्स, खुदा से डरने वाला शख्स, उसके खौफ में रहने वाला, अपने खानदान की बेहतर तरीके से निगहदाश्त करने वाला, अपने खानदान के बारे में फिक्र करने वाला, उनकी तरबियत करने वाला, जो मैं और आप आजकल नहीं करते, मैं ऐसे दिनों का मालिक बनाया गया, ऐसे महीनों का। मुसीबत की रात मेरे लिए ठहराई गई हैं। मुसीबत की रातें, खुदा न करे कि मैं और आप मुसीबत की रात में मुब्तला हूं। उन्हें पूछे जिन पे मुश्किल होती है, रात नहीं गुजरती, जहां पे लिखा है, अय्यूब कहता है वो ऐसे तजर्बे से गुजरा। मुसीबत की रातें, दुख की रातें, परेशानी की रातें मेरे लिए ठहराई गई हैं। जब मैं लेटता हूं तो कहता हूं कब उठूंगा, पर रात लंबी होती है, लंबी है गम की रात। लेकिन रात ही तो है, गम की रातें बड़ी लंबी होती है, दुख की रात लंबी होती है। उसे पूछे जिसे दर्द है, तकलीफ है रात को, दवाई भी असर नहीं करती। खुदा ने मुझ पर और आप पर रहम किया, खुदा ने मुझे आपको सेहत और तंदुरुस्ती दी है, शुक्र किया करें। हर लम्हे हम जब सांस एक दूसरे, जब सांस के बाद दूसरा तीसरा सांस आपको आ रहा ना, शुक्र किया करें। ऐसा शख्स जो खुदा से डरता, अपने खानदान की बेहतर तरीके से खबरगिरी भी करता, उनकी फिक्र भी करता, खुदा के साथ वफादार, दयानदार, कामिल, कहता है रात लंबी हो जाती है। मैं लेटता हूं, कहता हूं कब रात खत्म होगी, कब उठूंगा। दिन निकलने तक मैं इधर उधर करवटें बदलता रहता हूं। पंजाबी में पता क्या कहते हैं, उछल-वट। क्यों? दर्द होती है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, चाहता है इंसान दिन चढ़ जाए, रोशनी आ जाए। मैं और आप अभी तक अंधेरे में हैं, निकले। मैं सारी रात करवटें बदलता रहता हूं, दिन निकलने का इंतजार करता रहता हूं। मेरा जिस्म कीड़ों और मिट्टी के ढेरों से ढका है। ऐसा हाल किस शख्स का? खुदा के बंदे का। अब ये दिखा करेगी क्यों मुसीबत आई मुझे और आपको सिखाने के लिए याद किया, क्योंकि जो दुख है, जो मुश्किल है, जो तकलीफ है, वो हमें सिखाती है। सुन ले क्यों, कैसे हम, जैसे अय्यूब सब्र कर रहा था और उसका नाम अय्यूब साबर पड़ गया। तकलीफ आपको ताकतवर बनाती है। उल्टी काम मैं बता रहा हूं आपको, है ना। तकलीफ आपको ताकतवर बनाती है, और जो डर होता है वो आपको बहादुर बना देता है। मैं अपने घर में बड़ा डरपोक था, मैं आपको सही बताऊं, लेकिन अब नहीं हूं। जब मैं घर में था, छोटा था, मुझे लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, और मेरे घर वाले कहते हैं डरपोक है।
لیکن جب زمانے میں، دنیا میں، فیلڈ میں ہر طرح کے لوگوں کے میں جا کے بیٹھا ہوں، پھر میں نے اس دنیا سے سیکھا، تکلیف میں سے گزرا، طاقتور بنا، ڈر میں سے گزرا، بہادر بن گیا۔ اب مجھے بہادر منہ سے تو نہیں کسی کو کہنا چاہیے، لیکن میں کئی کاموں میں بہت بہادر ہوں۔ آپ بھی بہادر بنے۔ تکلیف آتی ہے، گزر جاتی ہے، ڈر، خوف جب تک آپ کے اندر رہے گا آپ بہادر نہیں بن سکتے۔ اگر آپ تکلیف پر اور ڈر پر قابو پا لیں اور قابو پانا سیکھ لیں، پھر زندگی آسان ہوتی ہے۔ زندگی آسان ہوتی نہیں، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے، انسان خود بناتا ہے۔ سن لیں سب لوگ جو پریشانی کی حالت میں ہیں، سن لیں، ڈر آپ کو بہادر بنا دیتا ہے اگر آپ اس پہ قابو پا لیں، قابو پانا سیکھ لیں، اگر تکلیف میں سے گزریں، خدا پر بھروسہ رکھ کے آپ طاقتور بن جائیں گے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے۔ کس طرح سے؟ پہلی بات، دعا کر کے، کچھ دعا کر کے زندگی کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ بہت بڑا ہتھیار ہے، ایوب کے پاس بھی تھا، کچھ دعا کر کے، کچھ صبر کر کے، کچھ معاف کر کے، کچھ نظر انداز کر کے۔ چاروں فکریں دراؤں گا، یاد رکھنا، آپ کے کام آئیں گے۔ میں ایوب کے تجربہ کی باتیں ہی کر رہا ہوں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جس مشکلات میں سے، پریشانی میں سے خدا مجھے اور آپ کو گزار رہا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں، دعا کیا کریں۔ آپ اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں، صبر کریں، جیسے ایوب نے صبر کیا۔ اتنے مشکل وقت میں رات نہیں اس کی گزرتی تھی، بدلتا رہتا تھا، اور کہتا ہے میری کھال سمٹتی اور پھر ناسور ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اتنا کمزور ہو گیا، چارپائی نہ نکل گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اس کی کھال سمٹتی جا رہی ہے۔ اور ایوب خدا کا بندہ، اس کے بدن میں جو زخم ناسور بن گئے، میرے دن جو لاہے کی ڈھرکی سے بھی تیز رفتار ہیں۔ یہ نوجوان جو انگلش میڈیم میں، ہم تو پنجابی میڈیم میں، اس لیے آپ کے لیے ان لفظوں کو ذرا آسان بنانا پڑتا ہے۔ جلاہا، جو اب گھروں میں کھیس اوپر رہتے ہیں، چادریں لیتے ہیں، آج کل تو مشینی دور ہے، لیکن پہلے یہ لوگ جلاہے یہ کام کرتے تھے، ان کی جو ڈھکی ہوتی تھی بڑی تیز چلتی تھی، تب جا کے ایک دھاگا دوسرے دھاگے کے ساتھ جا کے مل جاتا تھا اور پھر یہ کپڑا بن جاتا تھا۔ آج کل تو مشینی دور ہے۔ اور وہ کہتا ہے میرے دن ایسے تھے اور بغیر امید کے گزرتے جا رہے تھے، بغیر امید کے گزرے جاتے تھے۔ پھر وہ خدا کے ساتھ بات کر کے کہتا ہے یاد کر کہ میری زندگی ہوا ہے۔ اب خدا ہوا جب آتی ہے تو چلی جاتی ہے، ایسے پتہ نہیں چلتا نا۔ وہ کہتے ہیں زندگی ایسے ہے، لیکن میں اور آپ سوچتا ہوں شاید زندگی بہت بڑی ہے، بڑی لمبی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابھی جس نوجوان کا، عاشق کا میں نے ذکر کیا، وہ بھی 40-45 ایئرس کا تھا، 40-45 سال کا جوان، طاقت والا شخص تھا، نوجوان تھا، لیکن 1-2 مہینے میں بیماری کی وجہ سے اس کی سانس بند ہو گئی، سو گیا تھا۔ زندگی بڑی مختصر ہے۔ ایوب کی کتاب مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے کہ میں اور آپ اس مختصر زندگی میں ایسے کام کر جائیں کہ لوگ ان باتوں کو یاد بھی رکھیں۔ کسی کے بارے میں نے کہا تھا کہ چھوٹی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا۔ دنیا بے ثبات میں، دنیا یہ جو ہے دنیا نا، یہ کوئی ثابت رہنے والی نہیں ہے، دنیا بے ثبات میں۔ عرصہ تھا بہت کم، چھوٹی عمر، عرصہ تھا بہت کم، مگر بڑا نام کر گیا۔ نام پیدا کرنے کے لیے آپ کو پھر کام کرنا پڑتا ہے۔
حلیمی، عاجزی، انکساری، ایوب کی طرح صبر میں سے گزرنا پڑتا ہے، دکھ میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور خدا کا بندہ کہتا ہے آہ یاد کر کے میری زندگی ہوا ہے، میری آنکھ خوشی کو پھر نہ دیکھے گی۔ تھوڑا سا بھی بخار ہو جائے بندہ کہتا بدلے میں نے مر جانا بھائی۔ ایوب پہ تو بڑی دکھ تھا، وہ کہتا میری آنکھ خوشی کو پھر نہ دیکھے گی، جو مجھے اب دیکھتا ہے اس کی آنکھ مجھے پھر نہ دیکھے گی۔ وہ اپنے آنے والے وقت کو یاد کر رہا ہے، آپ کو بھی کہہ رہا ہے آئے میں یار آپ اپنے آنے والے وقت کو یاد کریں۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو آئے میں یار آپ اس زندگی کو آسان بنانے کے لیے دعا کریں، صبر کریں اور ایک دوسرے کو معاف کریں اور ایک دوسرے کی غلطی کو بھی نظر انداز کریں۔ جو مجھے اب دیکھتا ہے اس کی آنکھ مجھے پھر نہ دیکھے گی، تیری آنکھیں تو مجھ پر ہوں گی۔ آئے خدا تیری آنکھیں تو مجھ پر ہوں گی مگر میں یہاں نہیں ہوں گا۔ کتنے لوگ پچھلے سال جدا ہو گئے، پریشان نہ ہو، مسکرائیں، خدا کا شکر ادا کریں، ڈر پہ قابو پانا سیکھیں، تکلیفوں میں سے گزرنا سیکھیں۔ اور خدا کا بندہ مشکل میں سے گزرا لیکن اس نے شفا پائی۔ جتنی دنیا کی آسائشیں سہولتیں اس کے پاس تھیں ختم ہوئی، اولاد بھی ختم ہوئی، لیکن پھر خدا نے اس کے ایمان کے وسیلے سے، اس کے صبر کے وسیلے سے دگنی چیزیں اسے عطا کر دی۔ مجھے آپ کو بھی دیتا رہتا ہے، دیا کرو تمہیں بھی، دیا کرو تمہیں بھی، ہر چیز وقت بھی دیا کریں، دعا بھی دیا کریں، عزت بھی دیا کریں، کسی کو پیار بھی دیا کریں، پیار مانگا نہ کریں، دیا کریں، حسد نہ کیا کریں، خوش ہوا کریں۔ اس لیے خدا کے کلام میں ایوب مجھے اور آپ کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے، اے خدا تیری آنکھیں تو مجھے دیکھتی رہیں گی پر میں نہ ہوں گا۔ جیسے بادل پھٹ کر غائب ہو جاتا ہے ویسے ہی وہ جو قبر میں اترتا ہے پھر کبھی اوپر سوچ رہے میں رہا نہیں رہا، خوش ہو کے کام کریں، مشکلات کا قابو پانا سیکھیں، خداوند کے نام کو سربلند کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی ہم تیری یہوہ گا رہے تھے وہی سربلند ہے یہوہ جو مجھے اور آپ کو سنبھالتا ہے۔ اور یہ جو کلسے کی کلیسیا تھی، جب ان کے پاس خدا کا بندہ جاتا ہے خدمت کرنے کے لیے، ان کے حالات بھی بڑے فرق طرح کے تھے۔ اس لیے وہاں پہ لکھا ہے کہ جب میں ان کی خدمت کے لیے گیا تو وہاں پہ لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے بھی تھے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ جو اندیکھا خدا ہے، بت ہے، اندیکھا آپ کا پیر ہے، مرشد ہے، آپ کو اس کا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پتا۔ انہوں نے کہا میں دکھاتا ہوں پھر آپ کو۔ پھر اس نے انہیں خداوند یسوع مسیح دکھایا کہ یہ ہے وہ آپ کا نجات دہندہ، یہ اندیکھا خدا ہے۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت تمام مخلوقات سے پہلے موجود تھا۔ کون؟ یسوع مسیح، کیونکہ اسی میں سے سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں، حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے۔ کلیسیا کا سر وہ ہے، کلیسیا کا سر مسیح، مرد کا سر مسیح، عورت کا سر مرد۔ اسی طرح بنا یہ گراف ہے۔ میرا اور آپ کا جو سربراہ سر ہے وہ مسیح ہے، وہی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے، مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلے اٹھا، تاکہ سب باتوں میں اول درجہ اس کا، کیونکہ باپ کو یہ پسند ہے کہ ساری معمولی اسی میں سپرد کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کو اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل ملاپ کر لے، خاص زمین کی ہوں یا آسمان کی۔ صلح کرنی ہے۔ آیا آج ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ صلح کریں، جیسے مسیح
मुझे और आपको कहता है, ताकि मैं और आप एक दूसरे से जब राजी होगा ना, फिर आसमान पर सब कुछ राजी होगा। कहाँ पे लिखा है ये? आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमी जिनसे वो राजी है। आए मैं और आप उसे राजी करें, क्योंकि वो कहता है कि मेरी खुशी इसमें है कि तुम, मैं और आप उसके साथ जुड़े रहे और उसके वसीले से दुनिया में रहते हुए बरकत पाए, और अपनी अपनी जिंदगी को आसान करें, दुआ करके, सब्र करके, मुआफ करके, नजरअंदाज करके। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। आए हम दुआ मांगे, शुक्रगुजारी करें। जिस रहमत आप दुआ में रहनुमाई करें, चंद अल्फाज में कलाम के लिए जिसे खुदा ने सब नामों से ज्यादा इज्जत दे रखी है, इसके लिए खुदा का शुक्र है। हालेलुया, हालेलुया। सीन खुदावंद आसमानी बाप, पैरों करके खाली कुर्बानी तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ आज के खुदावंद इस खूबसूरत उपहार के लिए जो तेरी हजूरी में मिल सके। खुदावंद तेरा शुक्र करते सारे अब्दुस्ताज प्रस्तुश के लिए, खूबसूरत सीधा कलाम के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। खुदावंद जो कुछ आज भाई एक सीधा से खुदावंद हमने सीखा है, खुदावंद बख्श दे कि इस पर अमल पैरा हो सके। अपनी जिंदगियों को खुदावंद तेरी हजूरी में रखते हुए तेरे कदमों के साथ लिपटे रहे मेरे जिंदा खुदा, ताकि खुदावंद हम अपने आप को तेरी आमद के लिए तैयार कर सकें। खुदावंद तू जो बहुत जल्द आने वाला है, हम सब पर रहम कर, और जब इस ज़माना में खुदा मुश्किलात हैं और रोज़ बरोज़ खुदा मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, खुदा हम सबको बड़े ईमान की तौफीक दे, ईमान को मजबूत करे खुदा। जब भी कभी खुदा तेरी आजमाए जाएं तो हम आगे बढ़कर यीशु नासी का इकरार करें खुदा, कभी पीछे ना हटें, क्योंकि तुम्हारा रब है, तुम्हारा खालिक मालिक राज़िक है। तूने अपना प्यारा बेटा हमारे सब के गुनाहों के लिए बख्श दिया है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी शफ़क़त और मोहब्बत के लिए कि तू किस कदर इंसान से प्यार करता है। खुदा सारी खुदा जानों को जो तेरी हजूरी में झुकी हैं सबको बरकतों से मालामाल कर, खानदानों में सलामती और मोहब्बत और सुलह पैदा करे खुदा। कलीसियों में खुदा तू सुलह और सलामती पैदा कर। खुदा अपने खादिम को कसरत की बरकत दे और सबको भी कसरत से बरकत दे, और खुदा क्वायर के तमाम बच्चों को अपनी पनाह ले और ज़्यादा खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते सारी इबादत के लिए। हम सबको बारिक फजल दे ताकि पूरा दिन तुझ में होकर गुजरे, तुझ में से तेरे कदमों में रहकर, और तेरे तमजीद हमारे लोगों पर रहे, तेरा शुक्राना हमारे लोगों पर रहे, और तेरे नाम की जय जयकार करते रहे। तेरा शुक्र तेरी तारीफ और तेरे नाम की तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन, आमीन।
अपना हाथ बढ़ाए सदिए नजराने की तकदीस कर। इसमें तेरे लोगों की दरख्वास्तें हैं, मन्नतें हैं, मनजातें हैं, दरख्वास्तें हैं। हम बड़ी आजिज़ी के साथ तेरे मज़बा पर पेश करते और दुआ करते हैं अपने लोगों की शुक्रगुजारी दरख्वास्तों को अपने ज़रूर कबूल फरमा। और इसके इब्स आने वाले वक्त में इन सबको ढेरों खुशियाँ दे, इनके हाथों की कमाई में इनके घरों में रूहानी और जिस्मानी बरकतें तू नाज़िल फरमा। सदी की तकदीस करता कि तेरे जलाल पे इस्तेमाल हो। खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से जमायत बैठ जाए। वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो। रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आए यीशु अपने रूह के वसीले से इस रोटी और इस मैल की तकदीस कर, ताकि हम सबके लिए तेरा बदन, तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु एक रूह में बाप के पास हम सबकी रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। अपने दिल आदमी बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और रज़ी खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। निजात के बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन चर्च की सारी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये तेरा बदन है, तुझ में तरक्की। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जिन लोगों के पास अख्तियार है उन्हें अक्ल दानिश का है। इस मुल्क में अमन सुलह सलामती, डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट के लिए, बिशप ऑफ प्राइवेट के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम अदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और फरिश्ते सब बोले कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर और हमेशा तेरी वाकई कुदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदा देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नजर चाहकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामर काफ़ी कुर्बानी नजर और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते, उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, पूरी कलीसिया पर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूं तो मैं सही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नियत का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया, हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवार को मुआफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचा कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक रहे हैं। आए हम खुदा उनके मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें,